Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today start with my lecture number 23, which I came under Unit 3 for Digital Electronics, Practical 4 semester student. Today I cover the topic that is counter designing with the help of SR flip-flop, ring counter, and its type of ring counters. And the one is called your straight ring counter, other one is called your twisted ring counters. So firstly, we start in my previous video. I also share one example of your JK decade JK flip-flop, decade JK synchronous counters. So we also explain the designing of that particular type of counter one by one. So also here we show the one example of your counter designing with the help of your SR flip-flop. So in that case, the SR flip, we can design the synchronous counter with the help of SR flip-flop in mode 6. So you tell me about what do you mean by mode 6 counter. As per in your mode 6 counter, you are having note cover in your 2-bit counter because 2 raised to power 2 is equal to 4, and you're having 4 states, but in which they are more depend upon your states. So 2 raised to power 3 is equal to 8. So that will be covered into your 2 raised to power 3. Clear? So that's why here we mention mode 6 counter using SR flip flop. एंड मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको किसी की डिजाइनिंग करनी है तो आपको जिस फ्लिप फ्लॉप के थ्रू डिजाइनिंग करनी हो उसकी एक्साइटेशन टेबल का पता होना चाहिए. मैंने यहाँ पे एसआर की एक्साइटेशन टेबल मेंशन की हुई है. ठीक है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करनी है की है कि हाउ यू कैन ड्रा द you can say excitation table for that particular flip flops, and also for every either JK, T, D and SR flip flops. So firstly we draw the truth table for particular type SR flip flop, then you can draw the characteristics table, then you can draw the excitation table with the help of your characteristics table, and the final we get the excitation table for your SR flip flops. Clear? So I will here, that is qt is your previous state, qt plus 1 is your next state, s and r, that will be show your value at that particular sequence. So you can draw the synchronous counter, or you can say mode 6 counter with the help of your SR flip flops. So you have having mode 6 counter. In mode 6 counter, you are counting value from your 000 to 6. Clear? So here we mention that state is your mention value 000, that is 101 is your 6 5. And how you can show the you can say your 5 के बाद क्या आता है आपका 6. तो 6 वैल्यू क्या आएगी, यहाँ थोड़ी टेबल में गलती है, तो आप कैसे करेंगे 000 क्लियर? ठीक है, अगर आपकी लाइक इसने नंबर ऑफ वैल्यूज को फेच किया हुआ है एज पर दैट ऑर्डर, सॉरी 0 2 3 6 5 and 1, तो इसी ऑर्डर में भी आप करवा सकते हैं, आप सीक्वेंस वाइज भी करवा सकते हैं और जो ऑर्डर उसने बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं. तो मैंने इन ऑर्डर्स को लिख लिया पहले, ध्यान ध्यान से देखिए क्या क्या ऑर्डर है. 0 2 3 6 5 and 1, तो मैंने यहाँ ऑर्डर लिख लिया. 0 की वैल्यू क्या होती है प्रेजेंट स्टेट, 0 की होगी 000, 2 की 010, 3 की 011, देन 3 के बाद क्या है आपका 651. 6 के लिए क्या वैल्यू लिखते हो आप, 6 के लिए दैट इज 110, 5 के लिए 101 एंड लास्ट वन योर 1 के लिए 001. अब इनको आप एज पर दिस स्टेट डायग्राम के अकॉर्डिंग लाइक लिखेंगे. जैसे मान लो 000 है, तो ये 0 वैल्यू 0 के अगले वाली वैल्यूज क्या होती है, नेक्स्ट वैल्यू 0001. जैसे ये 000 उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 010. ठीक है, अब अगर आप ये 010 लें तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 011, तो नेक्स्ट वैल्यू आप सामने लिखते जाएंगे. क्लियर है, एज पर दैट प्रेजेंट स्टेट. ध्यान से देखिए, आपकी प्रेजेंट वैल्यू पे आपने ये वैल्यू शो करनी है 0 2 3 6 5 and 1, इनको आपने बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया, दैट शो यू 0 2 3 5 6 and 1. क्लियर? अब इन जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी आपने नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है. तो ध्यान से देखिए टेबल में इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है 010, जो मैंने यहाँ शो की हुई है. अब 010 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 011, जो मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग बिल्कुल सामने शो की हुई है. देन 011 की वैल्यू क्या है आपकी 110, तो ये मैंने इसके सामने 110 शो किया हुआ है. तो इस तरह से आप प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट को लिख लेंगे. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपने S0 K0 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी R0 की वैल्यू निकालनी है, तो आप Q0 की वैल्यू देखोगे. Q0 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 0 में चेंज हो रही है फ्रॉम हेयर. तो अब एक्साइटेशन टेबल आपकी क्या कह रही है, अगर 0 से 0 में चेंज हो रही है तो वो 0 डोंट केयर है. तो देखो Q0 की वैल्यू देखी थी फ्रॉम 0 to 0,
क्या ये जीरो डोंट केयर, तो जीरो डोंट केयर क्या लिखा जाएगा, Q0 के बिलोंग्स में R0 S0 पे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए Q1 की वैल्यू क्या हो रही है, Q1 की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ Q1 की वैल्यू क्या है 1 है, 0 से 1 पे चेंज हो रही है। 0 से 1 पे आपने क्या लिखा है 1 0। ठीक है, 0 से 1 पे आपने क्या लिखा है 1 0, ये Q1 है इसलिए R1 S1 होगा, तो यहाँ क्या लिखा है 1 0। क्लियर, ऐसे आपकी Q2 की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, फ्रॉम 0 टू 0 अगेन, 0 टू 0 पे क्या है आपका 0 डोंट केयर, तो किसके लिए Q2 है, Q2 बिलोंग्स टू योर R2 S2, 0 डोंट केयर। तो इससे आप सारी टेबल्स को ड्रा कर लेंगे। अब इस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही है आपकी, दैट इज 0 टू 6 तक आ रही होंगी वैल्यू, जितनी भी फाइनल वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू आपकी 6 है। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को आप के मैप के अंदर ड्रा करेंगे, तो आपकी टोटल 6 के अकॉर्डिंग आप 3 वेरिएबल का के मैप यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स के के मैप के अकॉर्डिंग आपने क्या किया हुआ है, यहाँ उसी तरह आपके 3 वेरिएबल्स हैं इनपुट पे, Q0, Q1 एंड Q2, उसको आप वेरिएबल्स को इनपुट मान लेंगे और जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यूज आई हैं, कितनी आई हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके अंदर 6 के मैप ड्रॉ करेंगे फॉर एवरी वैल्यू। जैसे सपोज करो कि आपने S0 के लिए ड्रा करना है, तो S0 की ये 0 पे वैल्यू डोंट केयर है, 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पे 0 है, 4 पे 0 है, 5 पे 1 है, तो इनको आप के मैप के अंदर पुट कीजिए। तो फर्स्ट वैल्यू याद रख लीजिए डोंट केयर 0 1। क्लियर, तो 3 वेरिएबल का के मैप है, दैट इज डोंट केयर 0 1 फॉर योर किसके लिए है, सॉरी S0 के लिए, S0 के लिए ये वाला के मैप है, दैट इज डोंट केयर 0 1। क्लियर, ध्यान से देखिए एक बार इसने कैसे पुट किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7, या तो उसने इस तरह से शो किया होगा या फिर 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, तो आप वो नंबरिंग जैसे आपने मैंने आपको क्लास में करवाया था के मैप के अंदर, अब वैसे भी इसे कवर कर सकते हैं। क्लियर है, तो इन वैल्यूज को मैंने यहाँ डाला है, सिंपली S0 की वैल्यू डाली है मैंने एज पर योर टेबल। S0 की वैल्यू क्या आ रही है, डोंट केयर 0 1 0 0 1, डोंट केयर 0 1 0 0 1, सो डोंट केयर 0 1 0 0 1। क्लियर, तो ये वैल्यूज यहाँ आपने पुट करवा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, अगर देखा जाए तो फॉर R0 के लिए 0 1 0 1 डोंट केयर 0, यानी कि 2 बार 0 1 आ रहा है, 2 बार 0 1 आने के बाद वो क्या हो गया डोंट केयर 0 हो रहा है, 2 बार 0 1 आ रहा है, 2 बार 0 1। क्लियर, 0 1, ठीक है, फिर डोंट केयर 0। क्लियर है, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे, फिर उनकी हेल्प से ये के मैप के अंदर आप उन वैल्यूज को क्या करेंगे, पेयरिंग के अंदर कवर करके उन पर्टिकुलर बिट्स की वैल्यू निकाल लेंगे फॉर योर R0 एंड S0, एंड फॉर द सेम थिंग फॉर योर R1 S1 देन R2 S2। तो आपने उन सभी की वैल्यू निकाल ली। अब इन वैल्यूज के थ्रू आप अपना सर्किट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो आपने क्या बोला है, मोड 6 काउंटर है, मोड 6 के अंदर आपकी वैल्यू 6 आ रही है, जो कि 2 पे कवर नहीं हुई है, 2 पे कवर हुई है, तो 3 के अकॉर्डिंग आपका ये 3 बिट काउंटर भी माना जाएगा, लेकिन 3 बिट काउंटर के अंदर आपकी फाइनल वैल्यू 1 1 1 है। आपने 1 1 पे नहीं जाना है, ओनली मोड 6 तक काम करवाना है। इट मीन फाइनल वैल्यू आपकी 1 1 0 तक जाएगी, उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली किस पे लेके आना है, 0 पे लेके आना पड़ेगा। तो वो 0 पे लाने के लिए आपका ये जो वैल्यूज निकालनी है, ये वैल्यूज आपकी हेल्प करेंगी सर्किट के अंदर। तो एज पर दी मोड 6 काउंटर यू कैन यूज 3 फ्लिप फ्लॉप्स हियर। ठीक है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स में अब ध्यान से देखिए आपकी R0 S0 की वैल्यू क्या आ रही है, Q1 Q नोट। R0 क्या है आपका Q1 Q नोट, R0 क्या है Q1 Q नोट। तो Q1 आपका कहाँ से आ रहा है, ये वाला आपका Q1 Q नोट, Q1 तो यहाँ से आ गया और Q नोट यहाँ से आ गया, तो ये दोनों वैल्यूज आपने किस में डाल दी, R0 में डाल दी। क्लियर, ठीक है, Q1 ये वाला, ये Q1 चला गया, और दूसरा क्या है Q नोट बार, दैट इज Q नोट बार, तो यहाँ पे क्या मिलेगा Q1 Q नोट बार किसको चला गया, R0 को। क्लियर, सेम फॉर S0 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, S0 की वैल्यू आ रही है Q1 Q नोट बार, ये तो हो गया कवर आपका S0 का। R0 की वैल्यू आ रही है Q1 Q नोट बार, सेम S0 Q2 Q नोट बार, S0 कितना आ रहा है Q2 Q नोट बार, S0 कितना आ रहा है Q2 कहाँ से आ रहा है, दैट इज Q2 और Q नोट बार यहीं से सेम। क्लियर, तो इस तरह आप जहां जहां जिस लॉजिक की वैल्यू आ रही है वहां एंड गेट के थ्रू वो लॉजिक क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, और फाइनल सर्किट आप किसके लिए बनेगा, सिंक्रोनस काउंटर विद द हेल्प ऑफ मोड 6 काउंटर्स। क्लियर,
नेक्स्ट ईयर का कम अगर आपको एक दो एग्जांपल्स और चाहिए तो मैं और भी शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन उससे पहले आपको इन के मैप्स के अंदर वैल्यूज डाल के इन पर्टिकुलर R0, S0, S1, R1, S2, R2 6 के मैप्स के थ्रू वैल्यू जो आएगी उन वैल्यूज को आपने सर्किट डायग्राम के अंदर ड्रा करना है। जैसे आपका S1 है तो S1 आपका क्या आ रहा है, सॉरी S1 आपका आ रहा है Q2 ओनली, तो S1 पे ओनली Q2 आ रहा है। तो देखो सर्किट के ऊपर S1 पे क्या आ रहा है, यहाँ से Q2 आ रहा है, Q2 को हमने S1 पे दे दिया डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं आई, ओनली एक सिंगल एलिमेंट आया आपका, ठीक है। अब S2 कितना आ रहा है आपका, सॉरी S1 आपका Q2 आ रहा है, R1 कितना आ रहा है, Q1 Q0 बार, दोनों बार है, Q0 भी बार है, Q1 भी बार है R1 पे, ठीक है। तो R1 पे क्या आ रहा है, Q0 Q1 बार आ रहा है, R1 पे Q0 बार तो यहाँ से आ गया और Q1 बार यहाँ से आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला है, ये किसको चला गया, R1 को चला गया, क्लियर। तो इस तरह हम जो रिमेनिंग जो S2 R2 उसको भी सेम इसी से ड्रा कर लेंगे। ये आपका किसके लिए बन जाएगा, सिंक्रोनस काउंटर फ्रॉम मोड 6 काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट यूर कम विद योर टाइप ऑफ रिंग काउंटर। व्हाट डू यू मीन बाय रिंग काउंटर? रिंग काउंटर मीन्स आफ्टर गेटिंग द final value by designing the particular type of synchronous counter, it again resume its condition, like from it's starting from 000, okay, and the final value will be 111. After this it will be again start from your 000. So by the use of ring counter you can getting that particular type of phenomena. So here we mention the 4-bit ring counter. So 4-bit. So 4-bit having number of state is 15 if you count the value from 0 to 15, and if you count the value from 1 to 15, its final value will be 116. क्लियर। तो इसमें मैंने डी के यूज से बनाया हुआ है, D0, D1, D2, D3। मैंने पहले भी बताया था काउंटर को बनाने के लिए आप जेके भी यूज कर सकते हैं, डी भी यूज कर सकते हैं और टी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपने डी यूज किया हुआ है, तो एज पर दी डी फ्लिप फ्लॉप आपने 4 डी लगाए हुए हैं। 4 डी लगाने पर आपकी वही आउटपुट आ रही है Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो आपके इसके Q0 बार यहाँ शो करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने बोला है कि हर एक फ्लॉप एक विदाउट कॉम्प्लीमेंट और एक विद कॉम्प्लीमेंट के आउटपुट से शो किया जाता है, क्लियर। और यहाँ पे आपने क्लॉक को साइमल्टेनियसली अप्लाई किया हुआ है, क्लियर। तो रिंग काउंटर आपका सिंक्रोनस काउंटर की टाइप बन गया, क्लियर। यहाँ इसकी क्लॉक सभी की क्लॉक को आपने कॉमन किया हुआ है, ठीक है। और प्रीसेट जो है वो डिवाइस को, सपोज ये मेमोरी एलिमेंट है तो पहले से कुछ आउटपुट इसके अंदर स्टोर रह जाती है, प्रीसेट उस डिवाइस को बिफोर वर्किंग में लाने से पहले सेट स्टेट में सेट करेगा। तो यहाँ पे एक बबल लगा होगा, बबल का मतलब क्या है, ये एक्टिव लो पे काम करता है। जब इसको आप 0 दोगे तो 0 देने पर इसकी वैल्यू अंदर जाके 1 हो जाएगी। जैसे इसको 1 मिलेगा ये सारे जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, क्लियर। समझ में आया। नेक्स्ट क्या किया आपने, आपने वही सेम आउटपुट को नेक्स्ट की इनपुट, आउटपुट को नेक्स्ट की इनपुट, आउटपुट को नेक्स्ट की इनपुट। अब रिंग काउंटर में क्या होगा, जैसे ही वो फाइनल वैल्यू पे पहुंचेगा, फाइनल वैल्यू पे सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 1 1, क्लियर। अब उससे दोबारा ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 0 0 से। हमने सिंपली आउटपुट को उठा के इनपुट से जोड़ देना है, क्लियर। और क्लॉक सभी को साइमल्टेनियसली गई है। प्रीसेट के लिए आपने एक और आई पिन शो की हुई है यहाँ पे, तो उसके थ्रू आप इसको सेट स्टेट में मेंशन कर देंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ मेंशन की हुई है कि क्लॉक सभी को साइमल्टेनियसली की हुई है, ठीक है। आल्सो वी हैव यूज्ड द ओवरराइडिंग इनपुट ORI टू ईच फ्लिप फ्लॉप। प्रीसेट एंड क्लियर आर यूज्ड एज एन ORI, यानी कि ओवरराइडिंग इनपुट है। देयर शुड बी एक्स्ट्रा इनपुट फॉर एक्सटर्नली टू ऑन और ऑफ द डिवाइस, क्लियर, एज पर माय रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर सेट देते हो प्रीसेट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी, व्हेन द क्लियर इज 0 देन आउटपुट इज 0। इट मींस प्रीसेट डिवाइस को सेट कर रहा है तो आउटपुट पे 1 ला रहा है, लेकिन क्लियर जो है वो डिवाइस को 0 कर रहा है तो आउटपुट पे क्या लाएगा, वो 0 लाएगा। तो जब हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तब हम फाइनल के बाद वैल्यूज को हम क्लियर से जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी स्टेट की सब चली जाएंगी आपकी 0 पे चली जाएंगी, क्लियर, ठीक है। तो प्रीसेट इज 0, क्यू इज 1, देन क्लियर इज 0, देन क्यू इज, उस समय क्लियर आपका क्या होगा, 1 होगा। थोड़ी गलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, जैसे इसके अंदर बताया हुआ है। रिंग काउंटर में क्या होगा कि आपका, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा सा आपको बाय मिस्टेक थोड़ा गलत हो गया मेरे से। तो कैसे मैंने इसको दूर किया है, रिंग मतलब कि रिंग की फॉर्म में, सॉरी, रिंग मतलब कि अगर आपने फर्स्ट स्टेट को 1 पे सेट कर दिया, प्रीसेट मतलब कि आपने 0 दिया यहाँ पे, तो मान लो इनिशियल पे आपके सारे फ्लिप फ्लॉप 0 पे थे, क्लियर, ठीक है। उस ये सारे फ्लिप फ्लॉप अगर आपके 0 पे हैं तो क्या होगा,
जब आपने फर्स्ट को 1 करवाना है तो आपने उसको एक्सटर्नली इनपुट दी, ओवरराइडिंग इनपुट 0 दी, तो ये 1 पे चला गया, ये सारे किस पे हैं, 0 पे हैं। जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये 1 यहाँ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉक पे पल्स पे ये वाला 1 यहाँ चला जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये वाला 1, लास्ट वाला 1 और ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके 0। क्लियर। अब दोबारा से 1 जब इनपुट पे दोगे तो ये जब दोबारा दोगे तो एज पर द ट्रूथ टेबल क्या हुआ, देखो ये 1 रोटेट हो रहा है। फर्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या दिया आपने, ओआरआई इनपुट को लो रखा हुआ है, तो आपका प्रीसेट 1 जा रहा है ओआरआई इनपुट के थ्रू, तो 1 होगा तो Q0 आपका 1 हो गया। वो 1 क्या हुआ, जैसे क्लॉक आपकी क्या है, वो डिपेंड करता है क्लॉक नेगेटिव एज ट्रिगर है या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्लॉक को लो रखा हुआ है, इनकी नेगेटिव एज ट्रिगर रखा हुआ है। तो अगली बार क्लॉक देने पर क्या होगा आपका, अब ओआरआई को तो हाई कर दोगे, ओआरआई काम नहीं करेगा उस टाइम पे, क्योंकि ओआरआई भी आपका क्लॉक भी नेगेटिव एज ट्रिगर है और ओआर भी क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर है। क्लियर। तो जैसे ही लो दिया ओआरआई पे, तो एज पर दी फिगर ओआरआई पे आपका प्रीसेट जा रहा है। क्लियर। तो प्रीसेट इस डिवाइस को क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्लियर। जैसे ही डिवाइस बंद हुआ उसके बाद आपने क्लॉक देनी स्टार्ट कर दी, और क्लॉक भी क्या है आपकी बबल की फॉर्म में नेगेटिव एज ट्रिगर है, मींस क्लॉक को 0 देना पड़ेगा, ना कि 1 देना पड़ेगा। तो जब आपने क्लॉक को 0 दिया एज पर दी टेबल, क्लॉक को 0 दिया नेक्स्ट स्टेट पे, आपने इसको चेंज कर दिया और को हाई कर दिया, तब वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने और को सिंपली एक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से अटैच कर रखा है। वो काम करना बंद कर देगी, ओनली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को यहाँ काम करवा देगी वो। ठीक है। जैसे उसको क्लॉक लो मिलेगी, ये 1 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, 0 पे चला जाएगा। नेक्स्ट पे वो वाला 1 नेक्स्ट पे चला जाएगा, इस तरह ये आपकी रोटेशन चलती रहेगी। जब आप लास्ट वैल्यू 1 पे आ जाओगे, तब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये 1 दोबारा फिर किस पे चला जाएगा, रिंग काउंटर में। यानी कि ये आपका इस तरह से कुछ सर्किट इस तरह से बनता जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर रिंग काउंटर। नेक्स्ट यू कैन केम अंडर विद योर टाइप्स ऑफ काउंटर। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ काउंटर, काउंटर हैविंग टू टाइप, वन इज कॉल्ड योर स्ट्रेट काउंटर्स और यू कैन से अदर वन इज कॉल्ड योर ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ठीक है। इन एज पर दी स्ट्रेट काउंटर और यू कैन से ट्विस्टेड रिंग काउंटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, इन स्ट्रेट काउंटर यू आर कनेक्टेड द लास्ट फ्लिप फ्लॉप, उसने बोला हुआ है कि इन दिस काउंटर द आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यानी कि एंड ओनली द सिंगल वन बिट अराउंड द रिंग, ओनली सिंगल बिट जाएगी इसके थ्रू, ट्विस्टेड रिंग काउंटर के थ्रू। तो वही सेम चीज है, तो ओनली सिंगल 1 ट्रांसफर होगा, ये वाला 1 यहाँ चला गया, यानी कि इट मीन स्ट्रेट रिंग काउंटर जो मैंने पहले बताया उसी तरह सेम ही काम करेगा आपका। सिंपली कुछ नहीं किया, इसकी आउटपुट को उठा के इनपुट पे दे दिया, तो ये सर्किट और वो वाला सर्किट आपका बिल्कुल सेम है। ओनली क्या किया कि सिंगल 1 इनकी सिंगल रोटेशन होगी उसके अंदर। उसके बाद आपने, अब देखो इस सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है, ये रहा ये सर्किट और आपका ये सर्किट बिल्कुल मैच कर रहा है। इट मीन्स आपका जो सिंपल वाला रिंग काउंटर है दैट इज आल्सो नोन एज योर स्ट्रेट काउंटर। क्लियर। वही सेम है कि आपका 1 जो है रोटेशन में आएगा, पहले आपने प्रीसेट को 1 दे दिया, फर्स्ट वैल्यू पे आपने क्लियर के थ्रू सभी को 0 किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपने जैसे प्रीसेट को 1 दिया, सॉरी 0 दिया, तो ये एक्टिव लो है, इसने इसको 1 करवा दिया, ये 1 हुआ, ये तीनों किस पे पड़े हुए 0 पे। जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आई, नेक्स्ट नेगेटिव क्लॉक पल्स आई, क्लियर, उसके थ्रू ये 1 आपका यहाँ चला गया और ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये वाला 1 जो होगा ये नेक्स्ट पे चला जाएगा और ये दोनों क्या कर देगा, 0 कर देगा, जैसे आपने टेबल के थ्रू मैंने पहले आपको बताया। तो उसी सेम मैनर से आपका ये स्ट्रेट रिंग काउंटर क्या करेगा, काम करेगा। अब ट्विस्टेड रिंग काउंटर जो है दैट इज अ मेन टॉपिक फॉर ऑल ऑफ दिस लेक्चर। In twisted ring counter, you can say that in that case that other name is called your Johnson counter. ठीक है। In which the output is connected, ठीक है, not to Q simple, that is connected to complement of output. It means आपकी जो output होगी इस केस में, उस वो जो आउटपुट है वो आपकी Q बार से कनेक्टेड होगी, इट मींस Q4 से। जो आपने पहले पढ़ा है उसमें जो आउटपुट है वो आपकी Q4 से कनेक्टेड है, इन योर ट्विस्टेड सॉरी इन योर रिंग काउंटर, यू कैन से स्ट्रेट काउंटर में। इसमें क्या है, जो आउटपुट आपकी Q4 से कनेक्टेड है। तो ये आपका दोनों में मेजर डिफरेंस है। सर्किट वैसे का वैसे जैसे आपने पहले ड्रा किया है ये वाला, यही काम करेगा। सिंपली इसकी आउटपुट को यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे अगर Q3 बार मेंशन किया होता तो Q3 बार से उसको अटैच कर देते। क्लियर। अब अगर इस फिगर के अंदर आप Q0 और Q0 बार, Q1 एंड Q1 बार, Q2 एंड Q2 बार और Q3 एंड Q3 बार को भी लाइक लाइक वो कर सकते हैं, लाइक मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। अब आप क्या करेंगे कि अब इसमें भी क्या होगा, अगर मैं इस सर्किट को उठा के यहाँ से जोड़ दूं तो Q3 बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
क्लियर। तो वो सर्किट वैसे का वैसे काम करेगा जैसे आपका वो वाला क्रम, सिंपली उसकी थोड़ी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसके अंदर भी देखो देखो पहले क्या दिया, क्लॉक जब जीरो, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे सारे के सारे जीरो पे पड़े हुए हैं। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, ठीक है, फर्स्ट क्लॉक पल्स किस पे है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर इस टेबल को उसका रिवर्स बनाना हो तो कैसे बनाओगे, यानी कि जब आप Q3 बार से जोड़ रहे हो, तो आप इस टेबल को अगर ट्विस्टेड रिंग लाइक सॉरी जॉनसन काउंटर में चेंज करना चाहो, यू कैन से ये ट्विस्टेड रिंग काउंटर की टेबल है, आपने अगर जॉनसन काउंटर में चेंज करना है तो ये सारे फर्स्ट पे वन होंगे, ठीक है, ये वन होंगे, क्लियर, ठीक है। अगर ये वन है तो जब आपने फर्स्ट क्लॉक पल्स दी तो ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे ये वाला जीरो हो जाएगा, बाकी वन, ठीक है। अगली वाली पे क्या होगा, अगर ये सारे वन थे, फर्स्ट जीरो हो गया, विद द हेल्प ऑफ फिर कॉम्प्लीमेंट इनपुट ये फर्स्ट जीरो हो गया, ठीक है, और सारे के यहाँ आपके वन है, ठीक है, ये जीरो हो गया फर्स्ट क्लॉक पल्स पे। जब सेकंड क्लॉक पल्स आई तो क्या हुआ, ठीक है, जो यानी कि इस टेबल को आप रिवर्स यूज कर लीजिए, जो जीरो है वो वन में चेंज कर दीजिए और जो वन है वो जीरो में चेंज कर दीजिए। इट मीन्स क्या होगा कि आप उल्टा रिवर्स कनेक्शन के थ्रू जोड़ रहे हैं, तो Q4 काम कर रहा है। तो मुझे नहीं पता मेरा Q4 क्या है लास्ट स्टेट पे, अगर वो वन है तो वो जीरो हो जाएगा, अगर जीरो है तो वो वन हो जाएगा, लेकिन एज पर माई लॉजिक मैं क्या कह रही हूँ कि आपका सर्किट में वो बिट रोटेट करती हैं, तो आपने लॉजिक तो ये वाला यूज किया हुआ है। अगर मैं देखो यहाँ पे सारे वन कर दूं, ये वाले सारे वन हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट पे क्या होगा, ये वाला जीरो बाकी सारे वन, उसके बाद ये जीरो जीरो ये वन वन, उसके बाद ये जीरो 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 ये वाला वन, अगले वाले में क्या होगा, सारे जीरोस हो जाएंगे, क्लियर। फिर अगले वाले में दोबारा फिर वो रिवर्स ऑर्डर में चलता जाए, क्लियर। तो इस तरह आप उसका ट्रूथ टेबल भी बड़ा इजीली ड्रा कर सकते हैं, सिंपली सिंपली आउटपुट में एक चेंज किया है, क्लियर। तो उस आउटपुट के चेंज होने के कारण ये टेबल वैसे की वैसे वर्क करेगी। वैसे ही इसका भी लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रहा है यहाँ पे। उसने क्या किया, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे सभी को जीरो रखा, क्लियर, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आई आपका फर्स्ट वाला वन हो गया, ठीक है। अब जॉनसन काउंटर में क्या है, जॉनसन काउंटर का अगला ना सॉरी जॉनसन काउंटर अदर नेम क्या है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर। तो क्या करेगा, अगर ये वन है, ठीक है, उसमें वो वन सिंगल बिट रोटेट कर रहा था, इसमें क्या होगा कि अगर ये वन है तो ये वन पे ही रहेगा, नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी। थर्ड क्लॉक पल्स पे तीन वन हो जाएंगे, फोर्थ क्लॉक पल्स पे चार वन हो जाएंगे। अब सारे वन पे हो गए। अब फिफ्थ क्लॉक पल्स पे फर्स्ट वाला जीरो हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला जीरो, उसके बाद नेक्स्ट वाला जीरो, नेक्स्ट वाला, इसमें यानी कि इसमें मल्टीपल वन आपके क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बिट ट्विस्ट हो रही है साथ के साथ, क्लियर, साथ के साथ अगले वाले बिट के साथ जुड़ रही है। जैसे ये वाला वन था, उसने अगले वाले को वन ट्विस्ट कर दिया, नेक्स्ट वाले इन दोनों वन ने इसको वन बना दिया, फिर इन तीनों वन ने इसको वन बना दिया, तो ये बिट क्या हो रही है, बिट बाय बिट क्या हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है, क्लियर। तो इस तरह आप किसी भी चीज को विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टेड रिंग काउंटर वन का अदर नाम आपका जॉनसन काउंटर है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये सर्किट वैसे का वैसे ही काम होगा। सिंपली आपने आउटपुट को उठा के बार से जोड़ना है, और सर्किट के अंदर टेबल भी वैसे काम करेगी आपकी। अगर आपने क्लॉक को फर्स्ट क्लॉक जीरो क्लॉक पल्स दी, यानी क्लॉक को आपने कभी कुछ नहीं दिया है, तो सारे जीरोस पे होंगे। फर्स्ट क्लॉक पल्स पे आपका ये वन हो जाएगा, बाकी सारे जीरो पे रहेंगे। अगली वाली क्लॉक पल्स पे क्या होगा, आपके ये दोनों वन पे हो जाएंगे, यानी कि इसने आउटपुट को ट्विस्ट करवा दिया नेक्स्ट पे, तो ये वाला वन हो गया, बाकी दोनों जीरो, एंड सो ऑन। तो इस तरह ये सर्किट काम करेगा। आप एंड देन आई ओवरव्यू माय वीडियो, that is, firstly I start with your you are design the mode 6 counter with the help of your SR flip flop, in which we can choose the number of states, we can say number of values in a randomly fashion, और उसी ऑर्डर में आप यहाँ इसको लिखेंगे, जो वैल्यूज उसने दी हुई है वो प्रेजेंट मानी जाएगी, उसके थ्रू हम नेक्स्ट ड्रा करेंगे। देन हमने उस वैल्यू को एक्साइटेशन टेबल के थ्रू यहाँ डाल दिया। फिर हम इन 6 की 6 वैल्यूज के लिए हम अपना एक ट्रू टेबल सॉरी के मैप ड्रॉ करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ जो के मैप वैल्यू मिलेगी उसको हम सर्किट डायग्राम के थ्रू ड्रा करेंगे, क्लियर। सो ये चीजें आपकी जितने भी आप काउंटर की डिजाइनिंग करना चाहो इसी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम विद योर रिंग काउंटर। रिंग काउंटर में आपने बिट को रिंग करना है, इनपुट पे रिंग की फॉर्म में रोटेट करवाना है। जैसे मान लो आप फर्स्ट पे थे, फिर सेकंड पे चले गए, फिर थर्ड पे आए, फिर फोर्थ पे आए, दोबारा फिर रिंग फैशन से दोबारा फिर उसी ऑपरेशन को रिज्यूम करना है। तो मैंने उसी को ऑपरेशन को बड़े आसानी से टेबल के थ्रू बताया, पहले वन पे थे फिर नेक्स्ट पे आए, ठीक है, उसके बाद ये वन यहाँ चला गया, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आपका स्ट्रेट रंग काउंटर जो कि आपका सिंपली एक रिंग काउंटर ही है। नेक्स्ट आपने लास्ट में पढ़ा है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। तो वो ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी क्या होगा आपका, उसका अदर नाम आपका जॉनसन काउंटर है, जिसमें सिंपली एक डिफरेंस है, उसमें आउटपुट आपकी Q4 से जुड़ रही है स्ट्रेट काउंटर में, ट्विस्टेड एंड जॉनसन काउंटर में आपकी ट्विस्टेड और नॉट एंड
और मतलब कि दोनों सेम थिंग है। आपकी जो इनपुट है वो आपकी Q4 बार से कनेक्टेड है। तो ये जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम बार आपका ट्विस्टेड और जॉनसन काउंटर पे मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है, और रिंग काउंटर पे क्वेश्चन पक्का बनता है। या काउंटर की डिजाइनिंग, मैंने आपको 2 एग्जांपल शेयर किए हैं यूजिंग जेके और यूजिंग आरएस। तो इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू आई थिंक आपको काउंटर डिजाइनिंग समझ में आ गई होगी। तो आप इसके थ्रू बड़ा अच्छा और इजी वे से आप कवर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले भी क्वेश्चन बताए थे कि आपको एक्साइटेशन टेबल भी ड्रॉ करनी आ सकती है किसी भी फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हैं। Then last, end with my video. Thanks.